Good morning to all of you. Today I am going to discuss about the writing task 2, and the topic is many countries now have people from different cultures and ethnic groups. What are the reasons for this? Is it a positive or negative development? First is introduction part. The present century has witnessed the surprisingly increasing formation of multicultural societies where the people who belong to different culture and religion and nation stay together. Although it has both negative and the positive effects on the country, there are many reasons why the people tend to immigrate from one country to another country. I would discuss some of the reasons along with its merits and demerits in the upcoming paragraphs. फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें सबसे पहले हमने रीजन डिस्कस किए कि क्यों लोग शिफ्ट होते हैं दूसरी कंट्री में. टू बिगिन विद सम कॉजेज ऑफ व्हाई पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री टू कंट्री. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड. Developed nations provide the excellent services like healthcare service, career opportunities and many more to their citizens. So that's why people from undeveloped countries or developing countries shift to developed nations for their better future. अच्छी अपने फ्यूचर के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए वो एक डेवलप्ड नेशन में शिफ्ट हो जाते हैं. Moreover, nowadays the most of the children pursue their studies in abroad because their facilities such as scholarship, practical skills, education system which they do not receive in their own country, and this is one of the reason the people move from one to another country. दूसरा रीज़न ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं आफ्टर सीनियर सेकेंडरी में +2 के बाद वो मूव हो जाते हैं दूसरी कंट्री में अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन सिस्टम, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो ज़्यादा है जो कि उनको अपनी कंट्री में नहीं मिल पाती. सेकेंड पैराग्राफ, पहले तो था कि रीजंस कौन कौन से हैं, सेकेंड है उसके एडवांटेजेस मल्टी कल्चर के और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं. दिस डेमोग्राफिक ट्रेंड brings many advantage to raise mixed countries. Firstly, immigrants such as engineers, scholars and other high-skilled professionals create a competition as well as productivity which boost up the country's economy. Secondly, this trend promotes the different custom and traditions such as new language, food and fashion. In addition to this, in this way a small country's culture get international standard which is a very beneficial for the nations to which it belongs. पहला तो था कि अगर वो दूसरी कंट्री में मिक्स कल्चर की एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि मोस्टली हम जो इंजीनियर, स्कॉलर्स हैं, कोई हाई प्रोफेशनल जो पर्सन है, अगर वो मूव करते हैं किसी दूसरी कंट्री में तो ऑब्वियसली जिसमें वो जाते हैं उनका कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका जो इकोनॉमी लेवल वो भी बूस्टअप होता है. दूसरा है कि जो अगर दूसरी कंट्री के पीपल जाते हैं उनके साथ उनका कल्चर, फैशन और लैंग्वेज भी शिफ्ट होती है जिससे उनकी जो लोकल जो इन्वायरमेंट है, जो लोकल लैंग्वेज है, फूड है, फैशन, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिल जाता है जो बेनिफिट होता है उसके नेटिव नेशन के लिए. For example, Punjabi culture is famous in many countries because many Punjabi people are settled in the different countries. Furthermore, multiculturalism also fosters culture diversity and hence people become open-minded and tolerant. पहला तो था कि एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते कि एग्जाम्पल जैसे कनाडा में बहुत सारे पंजाबी रहते हैं तो उनकी जो पंजाबी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, डिफरेंट उनका कल्चर वहाँ पे फेमस हो चुका है. दूसरा कि जो डिफरेंट कल्चर मूव होते हैं दूसरे नेशंस में उनकी वजह से जो उनके कल्चर को एक पॉपुलैरिटी मिलती है, उनको ओपन माइंडेड होते हैं पीपल और उनको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज को सहन करने की, पीपल को सहन करने की एक एनर्जी आती है उनमें. डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? हाउएवर डिस्पाइट its benefits, this situation has some negative consequences. Sometimes the different culture leads some conflicts between the people which create a disturbance in society and indirectly affect the country's economy.
कई बार होता है कि जो पीपल्स हैं उनमें आपस में नहीं बन पाती, जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, इनकी वजह से सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। वो इनडायरेक्टली इफेक्ट किसको करती है? कंट्री की इकोनॉमी को। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे इन अमेरिका वेयर इट हैज स्टिल एग्जिस्टेड द डिफरेंट बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक पीपल, जो कि इन ब्लैक एंड वाइट पीपल का जो भी डिफरेंस है वो आज भी अमेरिका में चल रहा है। लास्ट इज कंक्लूजन पार्ट। इन कंक्लूजन, ऑल्दो हैविंग अ लॉट ऑफ मेरिट्स ऑफ मल्टीकल्चर but drawbacks should not be ignored. I believe that the government's control play a vital role in society's growth and development. So they have to make sure that the equality and justice should be maintained if they want to move smoothly. अगर वो गवर्नमेंट स्मूथली अपनी कंट्रीज को चलाना चाहती हैं तो उनको ये होना चाहिए कि हर एक पीपल को प्रॉपर इक्वालिटी, समानता मिले और उनको प्रॉपर जस्टिस मिले। अगर ये चीजें होंगी तभी कंट्री ग्रोथ करेगी, अदरवाइज एक इकोनॉमी में बहुत सारा लॉस हो सकता है इसकी वजह से। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। इफ यू लाइक द आइडिया विच आई प्रेजेंटिंग ड्यूरिंग द वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।